Okay, so primarily this topic is formula based, and then the questions that are asked are on applications of indices, surds, and logs. Okay, but there are certain properties, formulas that we are expected to remember and memorize, and the questions are by and large based on those formulas and properties itself, right? So let's start with indices. Indices is nothing but a plural form of index. So what is index? Index is nothing but a power of something is known as index. Say for example, so this is what you known as power, or you may also want to call it as an index. The plural becomes indices, and this is known as what you call as base. Right, now there are certain characteristics and properties that we are expected to remember. So I'm sure you all know that, but still, we are just quickly going to go through all these properties, basically what you call rules or laws of indices. So we have, first thing is, we know when the bases are equal, powers can be added, right? So if you have a ki power m into a ki power n, so when I say, it becomes a ki power m plus n. So if you have 2 ki power 3 into 2 ki power 4, you may want to solve it independently, or you may want to take as 2 ki power 3 plus 4. So when the bases are equal, powers can be added, right? Similarly, when you have this in ratio, then the powers can be subtracted. So you have 2 ki power 8 divided by 2 ki power 3. You can take answer as 2 ki power 8 minus 3. So in a ratio, the powers will be subtracted. Then if you have, a ki power m whole ki power n, you can write a ki power m into n. So powers, if they are in brackets, you can simply multiply. In other words, 2 ki power 3 ki power 2 can be taken as 2 ki power 6. We can simply multiply. However, this is different from a ki power m whole ki power n. It cannot be written as a की पावर m into n. इसका एक अलग मतलब है. इसका मतलब है 2 की पावर 3 की पावर 2. That means the way you solve is, you solve like this. So a की power m into n. So you solve from the top 2. So this becomes 2 की power 9 basically, right? So in another words, for example, I have 2 की power 3 की power 2 की power 3, for example, and I'm looking to solve it. So what's the best way of approaching this particular question? How do we approach? We take top bottom approach. You go with the top values, you solve first this. So iski value banegi 2 की power 3, which is 8. So my answer is now 2 की power 3 की power 8. And then what we solve, whatever, I mean 2 की power 3 की power 8, इसका जो भी आंसर आएगा वो बनेगा मेरा 2 की पावर में. तो 3 की पावर 8 कितना हो सकता है? 9 की पावर 4, 81. 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर कितना होता है? 6561. 6561. So that's how you do it. ठीक है, इस तरीके से हम इसको अप्रोच करना पड़ेगा पावर्स में. ठीक है, उसी तरीके से a की पावर माइनस m है, इट कैन बी टेकन एज 1 बाय a की पावर m, और आई है 2 की पावर माइनस 3 कैन बी टेकन एज 1 बाय 2 की पावर 3. इसको इस तरीके से हम, नेगेटिव का मतलब होता है उसको डिवाइड करना है, उसको हम नीचे की तरफ ले जा सकते हैं. या सिर्फ a की पावर माइनस 1 होता है, यानी कि 1 बाय 1, यानी 2 की पावर माइनस 1, यानी कि 1 बाय 2 की पावर 1, बेसिकली 1 बाय 2 ये वैल्यू बनती है. फिर क्या होता है, इसमें इंडिपेंडेंट और प्रोडक्ट रूल्स भी हो सकते हैं. मतलब मान लो मेरे पास a इंटू बी होल की पावर m है, इसका सेम रिजल्ट आएगा a की पावर m इंटू बी की पावर m. वाइस वर्सा भी है, मतलब मान लो a की पावर m इंटू बी की पावर m दिया है, तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके होल की पावर m लगा सकते हैं. द आंसर विल रिमेन सेम. बाय द सेम लॉजिक वी ऑल्सो हैव a बाई बी होल की पावर m करें, इसको सॉल्व कर लें, या a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m को सॉल्व कर लें, तो भी मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. Then we have anything to the power of 1 is always the same value. Anything to the power of 0 is always 1. So these are few things that we are expected to know and see. Then we also have something known as an mth root of a. It is nothing but a की power 1 by m. So for example, I have under root of
a. So whenever we say under root of a, nothing is given here. Nothing is given means square is considered. So this becomes a ki power 1 by 2. For example, I have fourth root of a. I would write a ki power 1 by 4. Now, then we may use a combination where I have mth root of a ki power n. So this would be nothing but a ki power n normally, and this will be taken as 1 by m. Now here we have those previous formula a ki power m into n. So this can certainly be multiplied a ki power n into 1 by m. So this becomes a ki power n upon m. So nth root of something can be straight away written like this. Basically, it is using 2 or 3 formulas simultaneously, and that's when we are getting these kinds of results. So I'm sure you know all these formulas, right? So the first thing that we need to really know is, let's take a couple of questions. I want you to solve them and just give me an answer to this question. Let's say I have value like 256 divided by 576 की power 1 by 4 multiplied by 64 by 27 की power minus 1 by 3 multiplied by 216 divided by 8 whole की power minus 1. Just apply those properties given above and just send me the answer in the chat box quickly.
ओके, हाँ बाकी लोग। मैं आंसर लिख देता हूँ, जितने लोगों का आ गया है वो मुझे बता देंगे यस। ठीक है दिव्यम, कोई नहीं, रोहन ट्राई करो, कोई बात नहीं। 24 की पावर, देख लो हम, यही बनना चाहिए। 18√6। तुम √24 × 9 कह रहे हो। पता नहीं, अगर तुम 3 अंदर ले जाओगे तो अंदर अंदर 2 लेके जाओगे, हाँ तो ठीक है, 9 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 2 अंदर ले जाओगे तो 4 वहां चला जाएगा, तो 24 हो जाएगा, तो 9√24 हो जाएगा। ठीक है ना, 24 का जो अंडर रूट है उसमें से 4 बाहर निकाल लो तो आंसर आ जाएगा ओम, बिल्कुल ठीक है। जिनका आ गया वो लोग सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला। -13/6 पावर में तो -13 नहीं आएगा रोहन, खुशार सॉरी। 256 आपको पता है 2 की पावर में आता है, और 576 आपको पता है 24 का स्क्वायर। ओके, दिव्यम आपने एक्स की वैल्यू निकाली है। ठीक है दिव्यम, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नहीं आयमन, 6 जी गलत है। और वैसे भी आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो, ग्रुप में मत डालो। 1/18 √26 आ रहा है। नहीं बेटा, कुछ गलत हुआ है ना आईमन, अभी भी गलत हुआ है तुम्हारा कुछ। नव्या वापिस करो, थोड़ा सा ध्यान से करो, प्रॉपर्टीज लगनी है सारी।
सर 24 पावर 1/2 को क्या बेटा 24 की पावर 1/2? हाँ ये 24 का स्क्वायर है, हाँ तो पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आंसर में आ रहा है 1/18, हाँ 24 पावर 1/2। ना 24 नहीं आएगा। अब जो 24 की पावर 1/2 है ना, बेसिकली आप उसको क्या करो, 4 को बाहर निकालो, ठीक है। अंडर रूट में 4 को बाहर निकालेगी तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 6 24 होता है, 4 को बाहर निकालेगी तुम्हारे हिसाब से 36 आ रहा है। इसका मतलब जो तुम्हारा 18 है उसमें कहीं पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। वो जो 24 अंडर रूट निकाला है वो बिल्कुल सही है। अगर 9 अंडर रूट 20 आ रहा होता तो सही था, 9 अंडर रूट 24। ओके सर। ठीक है, ठीक है दिया, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। आयमन चेक करो ध्यान से। ठीक है नव्या, बनी बात, ये बन जाएगी, गलती कुछ? हाँ ठीक है, अब आ गया सही, गलती मिली आयमन? यस सर, जो मतलब इससे पिछले आंसर तो सिली मिस्टेक की वजह से अलग। सिली, हाँ फोकस फोकस बनाओ, सिली मत करो। हाँ जी, बाकी लोग, दिव्यम का आ गया, दिया का आ गया, गर्व कुछ बता नहीं रहे आप मेरे को, केशव, कुशार। वो क्लास अभी ज्वाइन किया है तो पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं था ना। अच्छा सचिन, ओम, तुमने एक आंसर दिया था, अच्छा तुमने दे दिया था, ठीक है गुड। वन बाई 54 आ रहा है सर फर्स्ट का। तुमने 6 की जगह 9 ले लिया होगा और उसका अंडर रूट निकाल के 3 किया होगा, इसलिए तुम्हारा 54 आ रहा है। समझ सकता हूँ कहीं ना कहीं गलती हुई है। जो 24 का अंडर रूट बन रहा है ना ऊपर, अगर तुम ध्यान से देखो केशव, वहां गलती हुई है, क्योंकि जो 576 होता है वो 24 का अंडर स्क्वायर होता है, मतलब उसकी पावर 1/4 करोगे तो फाइनली 24 का रूट बचेगा। 24 का रूट होता है 2√6 बनेगा, ठीक है। तो 2√6 वाला कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है, तो तुमने कहीं पे वो √6 वाला गड़बड़ कर दिया है 24 की वाला, चेक करो। ओम नहीं, ये गलत आ रहा है तुम्हारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, चेक करो कुछ गड़बड़ है। रोहन नहीं, x इज इक्वल टू 1 नहीं बनेगा। वैसे बाय द वे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे पावर्स जो है ना, पावर में वेरिएबल होता है, इसका मैं मेथड बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं बेसिकली एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ये है क्या एक्चुअली? ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं। सो व्हाट आर एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस? जहां पे द वेरिएबल is in the power. So the only way you really solve this is how, when the bases are equal, power can be equated. अब क्या है कि इसके अंदर जो है, जो वेरिएबल है मतलब वो पावर में हो जाती है। जैसे यहाँ पे x+2 है, अगर किसी, ये x+2 है, तो अगर पावर में x+2 है तो ये जो अननोन क्वांटिटी है वो पावर में है। और ध्यान लेना, कुछ लोग जो गलती करें क्यूब रूट है, इंटू 3 नहीं है, ये भी गलती हो सकती है। इट इज क्यूब रूट, नहीं ओम, ये क्यूब रूट है, तो ये x+2 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ये हटेगा। तो हमें क्या करना होता है, बेस को इक्वेट करना होता है ताकि हम पावर्स को इक्वेट कर सकें। वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, अगर किसी दो चीज की पावर इक्वल है ना, मान लेते हैं मैंने कहा कि x की पावर 18 इज इक्वल टू y की पावर 18, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू y है। उसी तरीके से मान लो मैंने कहा 2 की पावर s इज इक्वल टू 2 की पावर 83, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 83 है। सो व्हेन द बेसिस आर इक्वल पावर्स कैन बी इक्वेटेड, व्हेन द पावर्स आर इक्वल बेसिस कैन बी इक्वेटेड। तो यहां पर भी जो हमारा क्वेश्चन है ये बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर हमारे को जो बेसिस है उसको इक्वेट करना है और फिर हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं।
ऑफ कोर्स कहोगे तो मैं करवा दूंगा, बट आई थिंक आप लोगों को ये आंसर निकालना आना चाहिए, बिकॉज जो भी इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं वो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं यहाँ पे। रोहन एक डिजिट मिसिंग है, अदरवाइज सही था। उसके बाद एक डिजिट और आनी है जो तुमने आंसर मुझे दिया है, वो कहीं या तो टाइप नहीं किया या मिस हो गया या क्वेश्चन मार्क की जगह वो था, आई डोंट नो। केशव, मैग्नीट्यूड आपका सही है बट साइन में पंगा है। माइनस आएगा। बिल्कुल। हाँ, ये सर हो गया सर, वो उल्टा किया था, साइन चेंज नहीं किया। बस ठीक, हाँ कोई बात, मैं समझ रहा हूँ, सिली सिली मिस्टेक हो गई होगी। नहीं ओम, वो नहीं है, तुम कुछ गलत कर रहे हो मुझे लग रहा है मोटा। वो क्यूब रूट है, ध्यान रखना। तो जब वहां जाएगा तो x+2 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। चलो मैं एक बार ये वाला करा ही देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ये देखो, ये लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/4 की पावर x+2 होल डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये 1/3 हो जाएगा ना, इसकी पावर 1/3 तो डिवाइड बाय 3 में आ जाएगा। इज इक्वल टू, ऊपर 5 है नीचे 4 है, ये जो है ये ऊपर 4 है नीचे 5 है, तो मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ 15625 की पावर 4096 की पावर -1। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आई कैन राइट इट इन रेसिप्रोकल। अभी अभी मैंने बताया मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, मुझे 5/4 चाहिए। दिस इज नथिंग बट 5 की पावर 6, दिस इज नथिंग बट 4 की पावर 6, क्योंकि ये 2 की पावर 12 है, इसकी पावर -1। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4 की पावर x+2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5/4 की पावर -6. Now when the bases are equal, powers can be equated. Now this value needs to be equal to this value. So all you have to do is x+2 divided by 3 is equal to -6. x+2 is equal to -18, तो x is equal to -20, ये आपका आंसर है। अब कहाँ गलती कर रहे हैं मुझे पता नहीं, बट ये ऐसे करना था। दोबारा करना चाहिए। दोबारा बताऊं? यस सर। देखो वहां पे लिखा हुआ था क्यूब रूट, ऐसा क्यूब रूट ऑफ 5/4 होल की पावर x+2, ये लिखा था। हाँ ठीक है, सिली मिस्टेक, हाँ लग रहा था, क्योंकि मोर, अब चूंकि क्यूब रूट है अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं अभी डिटेल में समझा रहा हूँ, हालांकि इतना जरूरत नहीं है। x+2 इसकी पावर 1/3 लिख सकते हैं। मैंने कहा था ना, अंडर रूट ऑफ 2 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ 2 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 1/3। तो जो अंदर वाला है उसको यूं का यूं, उसके पावर 1/3, तो ये 1/3 आ गया। सेकेंड रूल ये था 2 की पावर 3 की पावर 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 4, या ये भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 1/4 होता तो मैं 2 इंटू 3 इंटू 1/4 कर देता, मल्टीप्लाई होएगा। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या बनेगा, ये बनेगा 5/4 की पावर x+2 होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये LHS हो गया। ठीक, अब RHS में क्या दिया था? RHS में ये न्यूमरेटर में 4096 था, डिनोमिनेटर में ये था। मैं उल्टा करके रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1 कैन बी रिटन एज 1/2, या मान लो 2/3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 की पावर -1 उल्टा, क्योंकि a की पावर -1 कैन बी रिटन एज 1/a, 1/a की पावर -1 को उल्टा लिख सकता हूँ a/1 की पावर 1। तो रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, इसको -1 बना दिया, तो 15625/4096 की पावर -1। मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूं? बिकॉज इफ यू सी
यहाँ 5/4 है, तो मुझे इसको 5/4 की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, और कोई मेरे पास कोई इलाज नहीं है, 5/4 की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अब मुझे इसका मल्टीप्लीकेशन पता होना चाहिए, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 कितना जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, तो ये बनेगा 5 की पावर 6 और ये बनेगा 4 की पावर 6 होल की पावर -1। अब ये -1 है, यानी प्रोडक्ट में हो सकता है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहले मैंने कराया था ना, a की पावर m b की पावर m कैन बी रिटन एज a/b होल की पावर m, ये अभी ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, और ऊपर -1 को बाहर रहने दे, तो अपन इसको 5/4 की पावर 6 लिख सकते हैं, और ये -1 तो है ही बाहर। अब वापस वो वाली प्रॉपर्टी आ गई, ये इन दोनों का प्रोडक्ट किया जा सकता है, तो ये बनेगा 5/4 की पावर -6। RHS में ये हो गया, LHS में क्या है, 5/4 की पावर x + 2 डिवाइडेड बाय 3। नाउ वी नो बेसिस आर इक्वल, 5/4 की पावर है, 5/4 की पावर है, व्हेन द बेसिस आर इक्वल पावर्स कैन बी इक्वेटेड। अब ये वाला जो इक्वल है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ये दोनों बराबर होंगे, तो बस यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, x + 2/3 = -6, x = -20। बनी बात सचिन? यस सर। ठीक, चल ओके, ठीक है। फिर हम आते हैं सर्ड्स पे। Then let us look at surds. ठीक है, सर्ड्स का मतलब होता है इट्स ए काइंड ऑफ इरेशनल नंबर, जितने टोपीधारी नंबर होते हैं सारे सर्ड्स होते हैं। अब जैसे मान लो ये √3 है, √2, इसको हम प्योर सर्ड बोल सकते हैं, दिस इज अ कंप्लीटली सर्ड। मान लेते हैं मैंने 3 × √2 कर दिया, इसको हम 3√2 लिख सकते हैं, इसको मिक्स सर्ड बोल सकते हैं। नाउ मिक्स सर्ड कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू अ प्योर सर्ड। तो मान लेते हैं मेरे पास 3√2 है, इसको प्योर सर्ड में कन्वर्ट करना है, तो ये 2 है, ये 3 मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना यहाँ कुछ, अगर कुछ भी नहीं लिखा, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो हम इसको स्क्वायर रूट मानते हैं, कुछ नहीं लिखा होता। तो अब जो 3 बाहर है, ये जो 3 बाहर है, इसको अंदर लेके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अंदर लेके जाने के लिए ये 3 की पावर 2 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट, क्योंकि अंदर 3 स्क्वायर होगा तभी 3 बाहर आया होगा, तो जब बाहर से अंदर जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मेरे पास होता 3 × 4th √2 मान लेते हैं, ठीक है, इससे मिक्सड, इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो 4th √2 है ना, जब ये 3 अंदर जाएगा तो इसकी पावर क्या रेज होगा, 3 की पावर 4। कैसे, अभी आपने ऊपर क्वेश्चन किया होगा √24, तो 24 को आप कैसे लिखते होगे, आपने लिखा होगा 2 × 2 × 2 × 3। सो इसमें से 2 स्क्वायर × 6 का √ आपने किया होगा। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर बाहर क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, √6। समझ में आ रहा है? सो दैट्स हाउ यू कन्वर्ट अ मिक्स्ड इनटू प्योर इनटू मिक्स्ड सर्ड। मेकिंग सम सेंस? ठीक है, then you must know what are the kinds of surds that can be added, what are the surds that can be multiplied. For example, let's say I have √2 plus √3. Can I do something about it? No. You see, if I have, let us say, mth root of x, so basically this is known as surd, this is known as index, this is known as radicand. ये नोमेनक्लेचर, इंडेक्स, सर्ड का साइन, रेडिकैंड। अब अगर मेरा इंडेक्स सेम है, मेरा इंडेक्स सेम है, तो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं। यहां पे क्या है, मेरा इंडेक्स सेम है। अब ये याद नहीं रखना है आपको, ऐसा याद रखेंगे तो भूल जाएंगे, बस ये पता होना चाहिए भाई इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको नहीं। तो यहाँ इंडेक्स सेम है और रेडिकैंड अलग है। ठीक है, अब अगर मान लो मेरा इंडेक्स अलग है, √2 ³ क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूं, नहीं कर सकता। माइनस कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं,
ये तो दोनों ही अलग हो गया, रुको इसको सेम बनाने दो मुझे। अब मेरा क्या इंडेक्स डिफरेंट है, इंडेक्स डिफरेंट। रेडिकैंड क्या है, सेम। क्या मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, क्या मैं इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता था, नहीं। क्या मैं इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, नहीं। लेकिन क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, हाँ। डिवाइड कर सकता हूं, हाँ। इसके अंदर क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/3 विच इज 2 की पावर 5/6। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्या मैं √2 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 2 कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं। 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/3, यही था। यानी कि 2 की पावर 1/2 माइनस 1/3 विच इज 2 की पावर 1/6। इसका मतलब है मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं और डिवाइड भी कर सकता हूं। सो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल, डिवीजन पॉसिबल, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल, डिवीजन पॉसिबल, एडिशन नॉट पॉसिबल, सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल, एडिशन नॉट पॉसिबल, सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर दोनों में से एक चीज सेम है, या तो इंडेक्स सेम है या रेडिकेंड सेम है, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब अगर दोनों ही अलग हैं, मतलब इंडेक्स भी अलग है और रेडिकेंड भी अलग है, मतलब मान लेते हैं अंडर रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 3। अब हमने क्या किया, इंडेक्स डिफरेंट और रेडिकेंड भी डिफरेंट। क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं, क्या हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं? इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये बस उसको आगे पीछे लिख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, इंडेक्स डिफरेंट, रेडिकेंड। सो √2 plus cube root of 3 is same as cube root of 3 plus √2, that's all, nothing more can be done, that's all we can do। ठीक है, तो अब हम किस तरीके के सर्ड्स को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी। मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम कर सकते हैं, अगर मेरा या तो इंडेक्स सेम कर दो या रेडिकेंड सेम कर दो, कोई ना कोई एक सेम हो गया तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें करनी है तो हमें पूरा रेडिकल पार्ट सेम करना पड़ेगा, यानी कि इंडेक्स भी सेम है, रेडिकेंड भी सेम है, कोफिशिएंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। मान लेते हैं मैंने कहा 2 क्यूब रूट ऑफ, मान लेते हैं 2 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 7 क्यूब रूट ऑफ 4 minus 5 cube root of 4. Now, in this case, you see this component, this part is same. Now you can certainly add, subtract. Why? Because I can always take cube root of 4 as common, and I can have 2 plus 7 minus 4, and I will have this as 5. So I can have 5 cube root of 4. Right? So I can certainly add, I can certainly subtract. If you really want to multiply, yes, we can multiply, for example, 2 cube root of 4 into, basically, let's say 7 cube root of 4, ठीक है, into minus 5 cube root of 4. तो 2 into 7, 14, 14 into 5, 70, minus 70, cube root of 4, इसका मतलब है इंटू 4 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 1/3, यही बात है, इसको लिख सकते हैं। सो बेसिकली -70 इंटू 4 की बेसिस आर इक्वल, पावर्स कैन बी एडेड 1 विच कैन बी टेकन एज -7 4 20, तो इसका आंसर आ जाएगा -280। सो यू कैन मल्टीप्लाई। हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 cube root of 4 divided by 7 cube root of 4. So obviously you can write this value as 2 cube root of 4 divided by 7 cube root of 4. So it gets cancelled. I get answer as 2/7. That takes care of the things.
ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग यू रिमेंबर इंडेक्स सेम रेडिकेंट सेम, इंडेक्स डिफरेंट रेडिकेंट डिफरेंट, इस टाइप से याद कर, लेकिन हमें ऑफ कोर्स इतना तो समझ आना चाहिए कि हम इसको जोड़ सकते हैं, इसको नहीं जोड़ सकते, इसको ऐड कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए सबसे पहले। तो इसके बाद आता है कई बार डिवीजन ऑफ सर्ड्स भी आता है, जैसे यहाँ पे तो हमने काट दिया डिवीजन ऑफ सर्ड्स। तो पहले बताओ यहाँ समझ में आ रहा है सभी को, ये कोई दिक्कत है इसके अंदर? जस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ड्स, और कुछ नहीं किया हमने इसमें। ओके, चलो वेरी गुड। नाउ then let's say we talk of some division of surds. Let's say I am having, there is before we go with division of surd, there is something known as a conjugate pair, right? So you have heard this conjugate pair. कॉन्जुगेट पेयर का मतलब होता है कि जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरा एक रैशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है? तो मान लेते हैं मैंने कहा मेरे पास एक सर्ड है 2 + √3, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा? 2 - √3। 2 - √3, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है? मान लेते हैं मेरे पास एक है √3 - 2, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा? √3 है √3 + 2। क्या बनेगा बोलो? ये बनेगा, ना कि ये गलत है। अब क्या करना है, सबसे पहले जो ऑर्डर है ना, पहले हमें उसको सेट करना होता है। जब भी हमें कॉन्जुगेट पे, आइडियली तो क्या है कि हमें पता है कि बीच वाला साइन बदल दो, लेकिन बीच वाला साइन तब बदल दो जब वो प्रॉपर ढंग से लिखा हो। प्रॉपर ढंग से लिखने का क्या मतलब है? प्रॉपर ढंग से लिखने का मतलब है कि पहले रैशनल नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद इरैशनल नंबर लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले क्या लिखा जाएगा? रैशनल नंबर लिखा जाएगा और फिर इरैशनल नंबर लिखा जाएगा। उसको हम तब जाके हम कॉन्जुगेट पेयर बनाते हैं। जैसे कि मान लो ना, ये क्वेश्चन क्यों आता है, कई बार आता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें क्या करना है? हमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, यानी कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लाना है, या उसको डिवीजन भी बोलते हैं। मान लेते हैं मैंने कहा कि 2 / 2 + √3, ये क्वेश्चन है, और इसको मैंने कहा रैशनलाइज करो। तो व्हाट डू यू मीन बाय रैशनलाइज? रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर मस्ट कंटेन अ रैशनल नंबर। सो हाउ डू यू गेट a rational number? You get rational number by multiplying numerator and denominator by its conjugate. So हमें पता है conjugate ये है। होता क्या इसमें? This is a + b into a - b, which is a² - b² का फॉर्मेट, and numerator में of course 4 - 2 √3 आ जाएगा। So we are not really interested in what is happening in denominator, but we are certainly interested in what is happening in मतलब न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, we are not interested, but we are certainly interested in denominator. So my answer is this, right? If the question is like this, rationalize √3 - 2, ये question है, मान लेते हैं। Obviously first you need to understand this question is this. Now we have to rationalize by -2 - √3 whole divided by -2 - √3. So this is a² - b² - 2 का whole square, ठीक है, -√3 का होल स्क्वायर। सो दिस गिव्स मी 4 - 3 एंड न्यूमरेटर गिव्स मी -2 - 2 √3. So that is the answer, -2 - 2 √3 upon 1. So that is one thing you need to understand. Dividing by a surd, anything dividing by a surd, it would be 2, ऊपर भी surd हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. So when you divide a surd by some number, it is or when you say divide, which basically means rationalizing. So you have to rationalize the denominator, which in effect means
you have to multiply both numerator and denominator by its conjugate. So conjugate is what you need to understand. When you multiply and divide both the values, you'll always get a rational number in the denominator. That is known as rationalization of surds, right? Now, if there are only two surds, one is sufficient. For example, I have 2 plus √3 whole divided by √3 प्लस √2 मान लेते हैं. इसको रैशनलाइज करना है तो मैं ऊपर √3 माइनस √2 करूंगा, नीचे भी √3 माइनस √2 करूंगा. इफ आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, दिस बिकम्स 2√3 माइनस 2√2, this becomes plus 3 minus √6. The numerator becomes this. You take denominator, you become √3 का whole square minus √2 का whole square. So what do you get? I mean, you will have 3 minus 2√3 minus 2√2, and here you get minus √6 whole divided by 3 minus 2, right? So that's how you are able to divide and rationalize. But if the denominator is having 3 terms, say for example 2 plus √3 whole divided by √5 plus √3 plus √2, then you will have to rationalize twice. For example, you may consider this as one value. Let's say you start this with one value and this with another value, and then you multiply by its conjugate, which is √5 plus √3 minus √2, and denominator में भी √5 plus √3 minus √2. So numerator जो भी मिलेगा उसको हम देखते हैं. Denominator a plus b into a minus b बनेगा, a square plus b square minus 2ab. So this is √5 plus √3 का whole square minus √2 का whole square. यही बनेगा. Once again, when you will be able to solve, ये बनेगा 5 plus 3 plus 2√15 minus 2. ये बन जाएगा. So you see my answer is numerator divided by 5 plus 3 8, 8 minus 2 is 6 minus 2√15. समझ में आ रहा है? Obviously you may want to take 2 common, so 3 minus √15. But once again, we have not rationalized. इसको further rationalize करना पड़ेगा 3 plus √15 और डिनोमिनेटर में भी 3 plus √15 करके. ऑब्वियसली न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होके कुछ तो n डैश आएगा, डिनोमिनेटर में 2 भी रहेगा, a plus b into a minus b. दिस इज, ये बनेगा 9 minus 15. सो वट एवर द आंसर इज, दिस विल बिकम कितना बनेगा, -6, तो -12 आ जाएगा डिनोमिनेटर में. ऑब्वियसली माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर दोगे तो डिवाइड बाय 12 आ जाएगा. सो यू सी इफ देयर आर 3 surds, 3 terms are there, in that case you are expected to rationalize twice for the denominator to give you a perfect rational number. ठीक है, ताकि सर्ड खत्म हो जाए. ऐसा इसको करने के लिए मुझे ये काम 2 बार करना पड़ेगा. ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए. इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स. बोलिए, यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? So if that is the case, I want you to do this couple of questions, of course one being easy relatively. मैं चाहता हूं आप एक बार इसको रैशनलाइज करके मुझे दिखा दीजिए. 1/4 minus √13, इसको रैशनलाइज करना है, पहला क्वेश्चन. और सेकंड क्वेश्चन है आपको जो रैशनलाइज करना है 4 plus √6 minus √10, इसको करना है. ठीक है, मुझे रैशनलाइज करना है. Okay, let's try solving the answers to these questions. ठीक है, ओम वेरी गुड, केशव सही है, वेरी गुड, नव्या वेरी गुड. ठीक है, दिया गुड. चार का आंसर आया, 5 बच्चे बचे हैं.
ठीक है, दिव्यम करेक्ट आंसर, गुड। अच्छा, रोहन ने आंसर दिया है। ठीक है रोहन, तुम्हारा पहले वाला तो 4 माइनस है प्लस है रोहन? ओके ठीक है, सेकंड वाले का थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इतना आसान सीधा सीधा नहीं है। दिव्यम सही है तुम्हारा आंसर सेकंड का। सर मेरा ठीक है। गड़बड़ है। दिया का भी सही है, दिव्यम का सही है, दिया का, केशव का। नव्या, ओम तुमने थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया, डिनोमिनेटर में लग रहा है गड़बड़ किया, ऊपर वाला तो ठीक ही लग रहा है।
हम्म। हाँ, अब इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है आपका, ये आंसर बनेगा। हाँ जी, समझ में आया सभी को ये गर्व? ओके, चलिए इसके बाद आता है, मैं आपको सिखाता हूँ कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। मान लो मैंने कहा √2 बड़ा है या √3 बड़ा है? यानी रेडिकेंड सेम है, इंडेक्स अलग है, इंडेक्स सेम है, सेम, ये डिफरेंट है। तो इंडेक्स सेम है तो जो ये बड़ा होगा, जो अंदर वाला रेडिकेंड बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स सेम है, जो रेडिकेंड बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, काम खत्म। बिल्कुल ठीक है। मान लेते हैं 5th रूट ऑफ 92 और 5th रूट ऑफ 87, कौन सा बड़ा है? 5th रूट सेम है तो ये बड़ा है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इंडेक्स सेम है, रेडिकेंड सिर्फ कंपेयर करना है उस केस में, क्योंकि ये सेम है, कंपैरिजन कहां से आएगा? रेडिकेंड से। उल्टा भी हो सकता था, √2 Q√2, यहां पे क्या है? इंडेक्स डिफरेंस है, रेडिकेंड सेम है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में जो इंडेक्स छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, उस केस में ये होगा। ठीक है, स्मॉल इंडेक्स इज ग्रेटर वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या बनेगा? स्मॉल इंडेक्स इज ग्रेटर वैल्यू, ये बड़ा है। इसमें क्या बनेगा? इंडेक्स सेम है, बिगर रेडिकेंड बिगर वैल्यू, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे हमें कंपेयर करना होता है। ठीक, प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों सेम अलग हो जाएं। मान लो मैंने कहा √2 Q√3, कौन सा बड़ा है? कैसे करोगे इसको? √2।
मुझे इसका आंसर बताओ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कौन सा बड़ा है, विच इज ग्रेटर? √2, ओके। अब इसको करने का जो तरीका है वो ये है कि हम या तो इंडेक्स सेम कर दें या रेडिकेंड सेम कर दें। मतलब रेडिकेंड तो हम कर नहीं सकते, तो इंडेक्स को सेम बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो दिस इज 2 की पावर 1/2, दिस इज 3 की पावर 1/3। अब इसका एलसीएम होता है 6। तो अगर मैं ऊपर 3 मल्टीप्लाई करूं, नीचे 3 मल्टीप्लाई करूं, तो ये 6 बन जाएगा। ऊपर 2 करूं, नीचे 2 करूं, 6 बन जाएगा। ये बनेगा 2 की पावर 3/6 और ये बनेगा 3 की पावर 2/6, राइट। अब इसको कर सकते हैं हम 2 की पावर 3 की पावर 1/6 और इसको कर सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 1/6, राइट। तो इसको लिख सकते हैं ये 6th रूट ऑफ 2 क्यूब और ये बनेगा 6th रूट ऑफ 3 स्क्वायर। तो ये बनेगा 6th रूट ऑफ 8 और ये बनेगा 6th रूट ऑफ 9। तो ये बड़ा है, तो क्यूब रूट ऑफ 3 बड़ा है। ये तरीका है इसको करने का। समझ में आ रहा है?
ऑब्वियसली ये लंबा मेथड है, ये समझाने का था तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। अंडर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 3, यहाँ 2 है ना, इनका एलसीएम क्या है 6। 6 करने के लिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी पावर 3 कर दो, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी पावर 2 कर दो। 6th रूट ऑफ 8, 6th रूट ऑफ 9। समझ में आ रहा है ये सभी को? ये शॉर्टकट है इसका, इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ सर्च। इस तरीके से कंपेयर करते हैं हम, ठीक है। लेट मी जस्ट अब कई बार अप्रोक्सीमेशन भी करना पड़ सकता है स्क्वेयरिंग टेक्निक्स करके। एक तो तरीका यही होता है, सिंपल वैल्यूज हैं। अच्छा मान लेते हैं हमें कंपेयर करना है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। तो हमको ये बताना है कि मेरा रूट 6 प्लस रूट 26 बड़ा है या रूट 3 प्लस रूट 31 बड़ा है। सो देखिए, हम जब अगर कंपेयर करना होता है, अगर छोटी वैल्यूज होती है ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो अगर हम किसी वैल्यू को स्क्वायर कर देते हैं, छोटी वैल्यू और छोटी हो जाएगी। मान लो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, तो और छोटी हो जाएगी। और अगर वो 1 से बड़ी है, मल्टीपल वैल्यू है, तो वो उससे बड़ी हो जाएगी, राइट। तो इसलिए हम जनरली एक तरीका क्या होता है, स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ। वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है कंपेयर करने में सम्स को। मान लो हमें ये कंपेयर करना है, ठीक है, ये कंपेयर करना है हमें, तो हम इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, इसका भी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 26 बन जाएगा, ठीक। और यहां पे बन जाएगा 3 प्लस 31 प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 31 बन जाएगा। तो ये बनेगा 26 प्लस 6 32 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 26 इंटू 6, 6 6 36, 6 12 प्लस 3 15, 156। तो ये 156 हो गया। और ये बनेगा मेरा 34 प्लस 2 रूट 91, यही बनेगा। तो 32 से 32 खत्म हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। तो हमें चेक 93 करना है 2 रूट 156 बड़ा है या 2 प्लस 2 रूट 91 बड़ा है। अब इसकी अप्रोक्सीमेशन आपको निकालनी पड़ेगी। इंसिडेंटली हम दोनों तरफ 2 भी कैंसिल कर सकते हैं। तो रूट 156 बड़ा है या 1 प्लस रूट 91 बड़ा है, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ रूट 93 आएगा, सॉरी। अगर ये 12 होता, ये 12 और 13 के बीच में लाई करेगा। 12 144, 13 169, ये 12 और 13 के बीच में लाई करेगा। ये मैक्सिमम 1 प्लस या तो 9 और 10 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो अगर इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू भी ले लें तो 11 आएगी, और इसकी कम से कम वैल्यू ले ले तो 12 आएगी। तो ऑब्वियसली ये वाला साइड बड़ा है, यानी दिस वैल्यू इज ग्रेटर। इसका मतलब दिस वैल्यू इज ग्रेटर। समझ में आ रहा है भाई? हमें क्या निकालना है, अंडर रूट ऑफ 156। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, अंडर रूट ऑफ 156 निकालना है। तो कैसे निकालोगे? अगर मैं अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर है 144,
13 का स्क्वायर है 169, इसके बीच में आ रहा है 156 कहीं ना कहीं, इसका मतलब है इसके बीच का आंसर होना चाहिए 12 के आसपास, 12 और 13 के बीच में कुछ होगा। मान लेते हैं हमें अंडर रूट ऑफ 93 निकालना है, तो हमें पता है कि अगर यहाँ 100 होता उससे तो कम है, और अगर 81 होता तो उससे तो ज्यादा है, यानी कि ये इसकी वैल्यू 9 से तो ज्यादा है और 10 से कम है, कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगी। इस तरीके से हमने अंदाजा लगाया है कि दोनों की अप्रोक्सीमेशन हम कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से हमें कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स जब करना होता है तो हमारा ये तरीका होता है सर्ट्स को कंपेयर करने का। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? दिव्यम, केशव, दिव्या, दिया, सॉरी, नव्या, ओम। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, सो इसके बाद जो लास्ट चीज आती है इसके अंदर, इस वाले आइडिया में सर्ट्स के अंदर, लॉग से पहले मुझे लग नहीं रहा आज हम लॉग स्टार्ट कर पाएंगे गिवन द टाइम। इसमें आता है फाइंडिंग आउट अंडर रूट ऑफ ए सर्ट। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है सर्ट का। मान लेते हैं हमें निकालना है अंडर रूट ऑफ 32 प्लस 4 रूट 15, रूट ऑफ रूट निकालना है। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है ना। अब अगर हमें ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, मान लेते हैं हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में, उस केस में हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे? उस केस में सबसे पहले अगर हमें ऑप्शंस दिया है, टीटा क्वेश्चन नहीं है मतलब टाइप नहीं करना, और हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो गो बाय ऑप्शंस। ऑप्शंस का स्क्वायर करोगे तो क्या वैल्यू बननी चाहिए? अंदर वाली वैल्यू बननी चाहिए। ये वैल्यू बनी, किसका करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि रिवर्स में ऑप्शन से हम जा सकते हैं, लेकिन अगर इसको सॉल्व ही करना पड़ जाए तो हमें कैसे करना पड़ेगा? इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालने के लिए अंदर वाली वैल्यू जब तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी तब तक अंडर रूट नहीं खत्म होगा। यानी अल्टीमेटली मुझे अंदर क्या वैल्यू बनानी पड़ेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जिसका हम अंडर रूट करेंगे तो जिसकी वैल्यू मेरे को a प्लस बी मिलेगी। ठीक, तो अब a प्लस बी मिलेगी, इसका मतलब है दिस वैल्यू शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्मेट होगा, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। रिवर्स ऑर्डर में करें, इसका मतलब है दिस वैल्यू विच इज अंडर रूट ऑफ 32 प्लस 4 रूट 15 मस्ट बी इन द फॉर्मेट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ तो अब चूंकि अंडर रूट है, एक बार हटा देते हैं। अल्टीमेटली आई एम सर्चिंग फॉर ए वैल्यू लाइक 32 प्लस 4 रूट 15 in the form of a square plus b square plus 2ab. Now, what is this 2ab? 2ab, square cannot have a root, right? Square cannot have a root. Therefore, this root wala component जो है, that must necessarily be equal to this component. There is no other way about it. है ना? Now, one way of approaching this question is two variable two equation, as in a square plus b square to be taken as 32 and 2ab to be taken as 4 root 15. अब अगर हम इसको a को b की टर्म्स में रखें और यहाँ पे डालें तो 4th डिग्री इक्वेशन बन जाती है। So that is kind of difficult for all practical purpose in the examination. So what we are trying to do is we try to do some sort of trial and error kind of position. So you say 2 cancels. Now we know a into b is 2 root 15. Now a and b needs to be such that the square of these two values must be 32. Now you may start thinking by saying, let us say a is equal to 2 and b is equal to root 15. If that is the answer, for example, if this were my answer, then for sure a square plus b square would have been 4 plus 15 and the sum comes 19, but we are looking for 32. So that means what we are imagining here, that a is equal to 2, b is equal to 15 is wrong, right? The next possible value, you may want to take it as, let's say, 2 root 3
into root 5. ये भी possibility बन सकती है 15. In that case, if you were to square this value, this becomes 4 3s are 12 plus 15, it becomes 27. Once again, we are nowhere reaching that value. What else is a possibility? What else is a possibility? I want you to think, try to think what else is a possibility. So what we are doing is A into B, right? A into B is 2 root 15. And I'm looking at the value of A and B such that A square plus B square is 32. I'm just trying to do trial and error where I approached A as 2 and B as root 15. It's not working out. I split this 15 into 3 and 5. That's the only way I can split. And I'm squaring it. You may want to split further. You may want to say this is 2 root 5 into root 3. So A becomes this becomes 4 5s are 20, and this becomes 3. It becomes 23. Once again, we are not approaching there. So what else can we think? This is a good quality question because it's not giving us the answer very directly. It is forcing us to think. Because I'm really wary of trying to approach fourth degree equation, because if I take, square A in terms of B and square it, it becomes a fourth degree equation while equating. Then it becomes troublesome. Of course, we can convert into quadratic, then quadratic needs to be further solved. So it makes sense for me to do some sort of trial and error. Any other thing that you can think of? 3 root 3 into root 5. 3 root 5. 3 मतलब 3 कैसे आएगा? यहाँ तो 2 है ना, 2 into root 15 है ना. सर इसके अंदर ऐसा करें तो कि ए स्क्वायर को 32 लेकर और बी स्क्वायर को प्लस माइनस कर दें तो ना इतनी मेहनत थोड़ा ना करनी है. AB is equal to 2 root 15 है. इसको अंदर भी तो ले जा सकते हैं. 15 into 4 हो जाएगा. अब समझो इसको कुछ ब्रेक कर सकते हैं, A और B को कुछ ब्रेक कर सकते हैं ताकि A स्क्वायर B स्क्वायर 32 आ जाए. 30 into 2. Very good. So this can be taken as root 30 into root 2. लिखा जा सकता है. So if you take A as root 30, B as root 2, तो A square plus B square 32 बन जाएगा. So now I can write it as this value, right? This value can be written as like this: root 30 का whole square plus root 2 का whole square plus 2 into root 30 into root 2. आ जाएगा यही वाली वैल्यू. 2 से 2 कैंसिल किया था. ठीक है, अंदर आ जाएगा रूट 16. ये 2 बाहर है. 2 रूट 15 की वैल्यू ये है ना. 2 रूट 15 देखो, ये 2 रूट 15 की वैल्यू, ये 2 रूट 15 की वैल्यू है. तो और हमें चाहिए 4 रूट 15, तो इसके लिए 2 लगाया है. सो दिस वैल्यू, दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 30 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. और हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है? इसका अंडर रूट. ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया. आंसर क्या आ गया? रूट 30 प्लस रूट 2. इसका मतलब है इसका जो अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट ऑफ 32 प्लस 4 रूट 15 इज इक्वल टू रूट 30 प्लस रूट 2. अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ऑप्शंस दिए गए होते, ठीक है, मान लेते हैं ऑप्शंस दिए गए होते, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते, इसका हम स्क्वायर करते तो ये क्या बन जाता? अगर मतलब मैं ये ऑप्शन होता तो मैं इसका होल स्क्वायर कर लेता, तो ये अंदर वाला आना चाहिए था. अगर मैं इसका, यानी कि अगर मैं रूट 30
प्लस रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो बनेगा 30 प्लस टू इंटू रूट 60, तो बनेगा 2 इंटू 2 रूट 15, ठीक है। तो ये 30 प्लस है, तो बन जाएगा 32 प्लस 4 रूट। तो मैंने स्क्वायर किया, ये अंदर वाला आंसर आ गया, तो मैंने कहा ये वाला मेरा ऑप्शन है, सो दिस इज माय आंसर। दैट इज हाउ यू फाइंड आउट अंडर रूट ऑफ अ सर्ड, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल टेक केयर ऑफ योर indices and surds. Now if you want we can start logs as well, we have half an hour. बट आधे लोग चले गए हैं, क्या हुआ, कुछ क्लास थी क्या उनकी, और या हैवी हो गया? Okay, let's take few questions before we proceed. We go to the next one. One is arrange in ascending order
ठीक है, दिया बिल्कुल सही आपका, नव्या ठीक है, गुड। ठीक है, नव्या एंड दिया दोनों ठीक है, बोथ आंसर्स आर करेक्ट, गुड। ठीक है ओम, बिल्कुल ठीक है, दिव्यम सही है। ठीक है ओम, गुड। ठीक है केशव, बढ़िया। Okay, give me answer to this question. होम ये क्या है, मेरे को समझ नहीं आया। ये सॉल्व करना है, अंडर रूट चलता जा रहा है, समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है मैंने। सर आपने राइट हैंड साइड में क्या नंबर लिखा है? 25 की पावर 16, ये वाला 16807। ओके सर। टेन बेटा ये क्या है, नंबर्स डिविजिबल बाय 10? नहीं नहीं, कुछ नहीं है लेना देना, 10 कौन सा है।
नहीं केशव 1/10 तो नहीं है। यस केशव सही है आपका आंसर। दिव्यम थोड़ा सा गलत है। हाँ -5। ठीक है ओम। तो y का आंसर आएगा 1/5। निकाल के देख लो एक बार। सर ये एक बार एक्सप्लेन कर दो, क्या चीज? ये वाला -5 कैसे आएगा? -5 मतलब वो पावर में बता रहे हैं ना। वैसे तो मतलब 1/5 आएगा वैसे उस सेंस में। तो 1/5 को 5 की पावर -5 लिख दिया। बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इसको k मान लेते हैं। मान लेते हैं √7 √7 √7 ये सारी वैल्यूज k है। ठीक है। तो अगर चूंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है उसमें से अगर मैं इतने वाले पोर्शन हटा दूं, 7 हटा दूं, तो भी ये भी के ही बनेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? भाई इतना सारा है √7 उसमें से एक मैंने हटा दिया, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो मैं इसको √7k लिख सकता हूं = k। स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ, 7k = k²। ये खत्म हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ गई? 7। लेकिन k क्या था? ये पूरी वैल्यू, यानी दिस वैल्यू इज 7। यानी अब y निकालना है। इसका मतलब बेसिस आर इक्वल, पावर्स कैन बी इक्वेटेड। तो अब इसका मतलब इसको 7 की पावर में लिखना पड़ेगा। तो ये 7 × 7 करोगे 49 × 7, ये 5 में जाएगा। 7 की पावर 5 बनेगा ये नीचे वाली वैल्यू। ऊपर y है =7। तो 7 की पावर 5y =7 की पावर 1। बेसिस आर इक्वल, पावर्स कैन बी इक्वेटेड। सो 5y = 1, तो y = 1/5। और यू मे वांट टू राइट 5 की पावर -1 उस सेंस में। ठीक है। चलो वन मोर क्वेश्चन before we wrap up. x into y into z is equal to 1। हमें रिजल्ट निकालना है 1/1 + x + y की पावर -1 + 1/1 + y + z की पावर -1 + 1/1 + z + x की पावर -1। Try to solve this.
चलो ठीक है। ओके, इट्स स्लाइटली टफर क्वेश्चन। ऑप्शंस जो है उसमें एक ऑप्शन 1 भी दिया हुआ है, 1/x+y+z भी दिया हुआ है। जब तक डिनोमिनेटर हम सेम नहीं कर पाएंगे तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 1 की वैल्यू मान लेते हैं हमने यहां से, इसको लिख सकते हैं 1/1 की जगह अपन x y z लिख लेते हैं, प्लस x प्लस y की पावर 1/1 यानी 1/y x z, ऐसा लिख रहा हूं मैं। क्या किया मैंने, 1 को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया और 1/y को इससे रिप्लेस कर दिया, ताकि मैं कुछ कॉमन निकाल सकूं। मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूं x, अंदर बचेगा मेरे पास yz प्लस 1 प्लस z। इसमें मैं 1 प्लस y प्लस 1/z करूंगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू बनेगी 1/z प्लस zy प्लस 1। ये नीचे z है, वो z ऊपर चला जाएगा। ठीक, और तीसरे वाले में चूंकि देखो z zy प्लस 1, zy 1 प्लस z, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस डिनोमिनेटर एज yz प्लस 1 प्लस z। तो मैं z की टर्म्स में रखना चाह रहा हूं, तो यहां पर भी मेरे को x हटाना पड़ेगा, बिकॉज 1/1 प्लस z 1/x कैन बी टेकन एज yz। ठीक है, 1/x कैन बी, अब ये yz आ गया। अब आप डिनोमिनेटर देखो तीनों, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सेम लग रहा है। तो अगर मैं 1/yz प्लस 1 प्लस z डिनोमिनेटर ले लेता हूं, तो अंदर मेरे पास बचेगा 1/x प्लस z प्लस 1। ये सॉल्व करना है मुझे। 1 बाय, इसको ऑर्डर में 1 प्लस z प्लस yz कर देता हूं, अंदर सॉल्व करूंगा 1 प्लस xz प्लस x डिवाइड बाय x बचेगा। यही बात है एलसीएम लेके। बट चूंकि मुझे x नहीं चाहिए, मैं 1 की जगह x y z पुट करके देखता हूं, तो 1/1 प्लस z प्लस yz, x की जगह मैं x y z, मैं क्यों पुट कर रहा हूं x y z, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन रिमूविंग x which is also present in denominator. Why? Because I don't have x here. So this gives me 1 plus z plus yz. I can take x common from here and I will have yz plus z plus 1, and I will have x common here. So if you look carefully, this x goes with this, and 1 plus z plus yz, 1 plus z plus yz, this goes with this. So the answer is 1. Of course, not an easy question, but yes, that's the approach. एक और तरीका हो सकता था, मान लेते हैं, आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड, पता नहीं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चूंकि ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैं एक सोच रहा हूं, हम शायद ऐसा कर लेते, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1 कर लेते, तो प्रोडक्ट 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती, इसकी वैल्यू आ जाती 1/3, इसकी वैल्यू आती 1/3, इसकी वैल्यू, मेरा आंसर आना चाहिए 1। और मेरे ऑप्शन में एक ए ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब इसमें एक ए ऑप्शन दिया हुआ है, वो मेरे पास ऑप्शन है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। फर्स्ट ऑप्शन ये दिया हुआ है। एक बी ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो दिया है मेरे पास वो 1 है, सी ऑप्शन है 1/x प्लस y प्लस z है, और जो डी ऑप्शन है x प्लस y प्लस z है। ठीक, अब मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z मान लिया, तो x की वैल्यू y की वैल्यू 1/3 आ गई। इस केस में 1/3 1/3 1/3 a 1 बन रहा है, पॉसिबल आंसर यहां से नहीं निकल रहा। 1 इसमें भी बन रहा है, 1/3 1/3 1369 1/9, ये तो आंसर नहीं होएगा। और ये बनेगा, सॉरी ये भी नहीं होगा, बिकॉज 1/3 है ना, तो ये तो 9 बन जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक तो पॉसिबल ये x प्लस वाई प्लस जेड, यानी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1। ठीक है, एक पॉसिबल आंसर ये बन रहा है। ठीक है, तो अब मतलब मैं ऑप्शन से ट्राई कर रहा हूं, मान लो ये नहीं आता, हम कैसे करते, तो या तो मेरा ऑप्शन 1 है और या मेरा x प्लस वाई प्लस जेड है। x प्लस वाई प्लस जेड अगर हमें ट्राई करना है तो हम एक और काम कर सकते हैं, एक और ट्रायल ले सकते हैं अपन। x को 1 मान लेते हैं, y को 1/3 मान लेते हैं और z को 3 मान लेते हैं, तो भी इसका प्रोडक्ट सेम आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट सेम आ जाएगा। उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं और क्या देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 4 प्लस 1/3, 4 प्लस 1/3 नहीं 13/3 आना चाहिए। अगर मेरा इसका आंसर 13/3 आ रहा है तो भी हम डाउट में रहेंगे,
लेकिन अगर नहीं, जहां तक मेरे को लग रहा है नहीं आएगा और हमारा आंसर यहाँ से निकल जाएगा, तो अब इसको ट्राई करके देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ये जो हमें रिजल्ट चाहिए 1/1 + x, 1 + x यानी 2 बन जाएगा, और 1/y यानी कि 1/1 3 बन जाएगा। तो ये वैल्यू ये बनेगी 1/1 + 1/y, तो 1 + 1/y का मतलब 1 + y यानी 1/3 बन जाएगा। 1/z का मतलब है 1/3 बन जाएगा, यही बन जाएगा। तीसरी वैल्यू मेरे पास बनेगी 1/1 + z की वैल्यू क्या है 3, तो 3 बन जाएगा, प्लस 1/x यानी 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/5 प्लस ये बन जाएगा 1/5 प्लस ये मुझे सॉल्व करना है 1 + 2/3, तो 1/5 + 1/5 2/5 बनेगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/5/3, तो ये बन जाएगा 3/5, तो 5/5, so this is giving me 1. Once again, I mean, we don't know, so at least we will be at risk in terms of handling this value and this value. That's how you can do, but then that is why we need to solve. Maybe we could have tried one more value to get an answer, but then looks like that we will be stuck up with these two options. So one is the, in this case we are able to cancel, so we are able to get 1. ठीक है, so केशव बनी बात ये? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, so we have taken care of today surds and indices. We have taken some questions also, so I hope you have understood. You may try to solve it. Next class में ना logs ले लेंगे और एक टॉपिक और कवर कर लेंगे ताकि हमारा ये वाला चैप्टर हो जाए। काफी क्वेश्चन अब आप इसमें कर सकोगे, लॉग वाले छोड़ देना, बस बाकी अप्रोच बाकी क्वेश्चंस ले लेना। Once again, log is a formula based topic. We will have to remember quite a few things and then go ahead and solve those questions. ठीक है, हाँ जी ओम बताओ कोई क्वेश्चन? नव्या, केशव, दिव्यम, दिया? No. चलिए then can No we question. wrap up for the day? Yes, sir. वैदिक मैथ्स वाली क्लास रिकॉर्डिंग ठीक है दिव्यम, मैं देखता हूँ, अभी वैदिक मैथ्स पढ़ी होगी, मैं भी भेजता हूँ आपको। ग्रुप में डालनी है, औरों को भी चाहिए? ठीक है, ठीक है, मैं लिंक भेजता हूँ। चलिए, थैंक यू। ये वाली तो नहीं भेजनी ना जो आज करी अभी? नो सर। No, sir. ओके, थैंक यू।